Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel to explore Pakistan globally. Today our subject is Social Studies Class 6 Pre-O level, Chapter number 8, Main Crops, Part 1 by Muhammad Imran Haider. Objective to study this chapter, main crops. Objective number 1, to study the main crops and livestock farming in Pakistan. What are the main crops and livestock farming? Objective number 2, to evaluate the changes in the farming and crops from 1960 to 2007 in Pakistan. What is crop? Introduction. A crop is a plant or animal product that can be grown and harvested extensively for the profit of subsistence. Crop may refer either to be harvested parts or the harvested in the more refined state. Most crops are cultivated in the agriculture or aquaculture. Aquaculture means aqua farming is the farming of fishing. You can see over here these are the pictures of different crops of Pakistan's. It's the corn, sugarcane, mixed vegetables, wheat, major crop of Pakistan as well as all over the world, rice, again corn. Here are some brainstorming questions for eye opener to check the background knowledge of the students. What did you eat for breakfast, lunch, dinner? The answer is the bread, egg, butter, jam, milk, eat, vegetables, rice, dal, chicken, chapati, naan, and extras. Question number 2, where do the main ingredients of these foods come from? Grains, dairy products, fruit, fruits, vegetables, poultry, livestock, for example, cattle and sheep. Next, the major crops of Pakistan. There are two types of crops. Try to understand, students. Here is a point, little bit confusing point to understand. Major crops of Pakistan are classified into two groups. First one is the fodder crops and second one is the cash crops. Here is the list of cash crops. Cash crops are those crops the farmers are producing for the point of earning the money to produce the crops and sell them to earn money. Cotton, sugarcane, tobacco, oil seeds. And the fodder crops are the wheat, rice, maize, barley, groms. These are the fodder crops. Is it clear now? I hope it is clear. There are two cropping seasons. अब ये दोनों फसलें जो हैं कैश क्रॉप्स हैं या फॉडर क्रॉप्स हैं, दोनों फसलें एक ही सीजन में नहीं हैं. देयर आर टू सीजन्स इन पाकिस्तान as well as in the other parts of the world. Especially I'm talking about Pakistan Rabi and Kharif crops. Rabi crops and Kharif crops. Kharif crops, Kharif being the first sowing season in Pakistan starting from April June. जो आजकल के समर सीजन के अंदर आके स्टार्ट होता है, अप्रैल से जून में उसकी कल्टीवेशन होती है, एंड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द अक्टूबर एंड दिसंबर. मौसम गर्मा में उनको बोया जाता है और मौसम सरमा के स्टार्ट में उनको कट कर लिया जाता है. फिर अगेन जो रबी क्रॉप्स होती हैं उनको कल्टीवेट किया जाता है, उनका सोविंग सीजन स्टार्ट हो जाता है. और इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? इंक्लूड्स राइस, कॉटन, मेज, शुगर कैन, मिलेट. These are known as the kharif crops. Next one are the Rabi cropping season. Rabi crops.
Rabi is the second sowing season in Pakistan, begins in the October December and harvested in the April May. अब अक्टूबर से दिसंबर तक खरीफ क्रॉप्स को काट के फील्ड्स क्लियर करके उसके बाद इनकी कल्टीवेशन कर देते हैं। इनकी कल्टीवेशन करते हैं, फिर जाके ये मेच्योर हो जाती हैं एट द एंड ऑफ मार्च अप्रैल मई के अंदर ये फील्ड्स क्लियर, देन फिर खरीफ क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है। अब इन दो वर्ड से ही अगर आप इनका थोड़ा सा देखना चाहें ना कि आप किस तरीके से याद रख सकते हैं, तो रबी रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जब कल्टीवेट करते हैं तो वो कौन से मंथ आते हैं, जिन मंथ के एंड में आर आ रहा है वो मंथ जो है वो रबी क्रॉप्स के कल्टीवेशन के टाइम है, स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर द एंड ऑफ द अक्टूबर। लेकिन सितंबर के एंड पे भी आर आता है, लेकिन सितंबर को मोस्टली कंसीडर नहीं किया जाता। अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों मंथ के एंड में आर आ रहा है और रबी के स्टार्ट में आर आ रहा है। यहां से आप थोड़ा सा इसको मतलब वो कहते हैं तुक्का लगा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा जहन के अंदर ये बात रह जाए। अब खरीफ क्रॉप्स है। अब खरीफ क्रॉप्स, अब डेफिनेटली एक का पता चल गया तो खरीफ क्रॉप्स। अब खरीफ को अगर आप उर्दू में लिखें, ठीक है, तो उसमें भी रे आता है। अच्छा, उसके लिए कौन सी चीज आपके लिए मतलब जहन के अंदर रह जाएगी, वो महीने जिनके एंड में आर आता है वो खरीफ में भी आर तो आता है, लेकिन ये वाला फार्मूला उस पर अप्लाई नहीं करना। रबी अगर आप इसको उर्दू में लिखें तो रे आएगा, इंग्लिश में लिखें तो आर आएगा। रबी अगर उर्दू में लिखेंगे तो रे, तो जिन महीनों के एंड में रे आती है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लेकिन उसमें सितंबर को काउंट नहीं करना है। ओके, खरीफ रबी। रबी के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आ जाती हैं? वीट, बार्ले, ग्राम्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, तंबाकू एंड मस्टर्ड। मस्टर्ड कहते हैं सरसों को। The first major crop of Pakistan as well as the world is the wheat crop. Wheat is the main crop of the world among all crops. History of wheat is too old. It started cultivating from 9,000 to 10,000 years ago from the Muslim state of Turkey. जो इसकी अगर तारीख को स्टडी करें तो इसका जो स्टार्ट है, जो प्रैक्टिकली स्टार्ट होता है कल्टीवेशन का, वो तुर्की से ही स्टार्ट होता, आज से 9 से 10,000 साल पहले की बात है। Wheat is grown in Pakistan, in South Asia, East Punjab, India. Refer to the Atlas map, page number 24 for Pakistan. Wheat is grown in the mainly in Punjab, Upper Sindh, but also in the parts of KPK, Balochistan, and Lower Sindh. You can see over here the major area of cultivation for crop wheat is Punjab. Most areas of Punjab are under cultivation of crop wheat. And second one is Sindh, third one is KPK, and fourth one is the Punjab. ये ऐसी फसल है जो मुल्क के बेशतर इलाकों के अंदर काश्त की जाती है। बाकी तमाम फसलें जो हैं वो किसी मखसूस एरिया के अंदर कल्टीवेट की जाती हैं, पूरे एरिया के अंदर नहीं की जा सकती। Wheat is the staple, for example, main part of our diet not only in Pakistan but throughout the world. Not only bread but many bakery items are made of wheat. Wheat products like bread, pasta you can see over here from the pictures. This is the dishes of pasta and eaten by the hundreds and the millions of the people throughout the world. This wheat is the grown on the large part of Earth's surface. The top 10 wheat producers are first to 10th.
China, India, USA, Russia, France, Canada, Germany, Ukraine, Australia, and Pakistan, according to the report of FAO 2008. Wheat and its uses. Wheat grows best in the dry and mild climatic region. It is a rabi crop planted or sown in winter and harvested in April. In Pakistan, the crop is watered mainly by the canal irrigation because canal irrigation is the main source of irrigation in Pakistan. Pakistan produces adequate wheat for its own needs, but in the some years, due to various climatic and other reasons, we have had to import wheat to meet our needs. Sometimes due to the natural hazards and man-made hazards, पाकिस्तान को बैरून ममालिक से ज़रूरत पड़ जाती है इंपोर्ट करने की. If we talk about the worth of capacity of इंडस प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान, अपर इंडस एंड लोअर प्लेन्स, उनके अंदर कैपेसिटी कितनी जितनी पाकिस्तान क्या कि आज टोटल आबादी है अराउंड अबाउट 22 करोड़ से 25 करोड़ के अराउंड अबाउट है. तो इतनी ही आबादी रखने वाले किसी और मुल्क को भी पाकिस्तान इन फील्ड से मुख्तलिफ ग्रेन्स क्रॉप्स ग्रो करके प्रोड्यूस करके और उसके बाद दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर सकता है, लेकिन उनको थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड्स अडाप्ट करके. ये इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे इन द फार्मिंग प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान. नंबर टू, इन इंडिया it is the main crop in eastern Punjab, but it is also widely grown in the upper Indian states. The comparison, the report of rice and cotton in 2009 to 10, cotton accounted for an average 50%, which rice was only 11. But the total export source economic survey of Pakistan. Next one is the cotton. Cotton is the second main crop of Pakistan. The first evidence of cotton was found in India and Pakistan and dates from about 6000 BC. Scientists believe that cotton was the first cultivated in the Indus Delta. This is the Indus Delta. You can see over here on the map. This is the Indus River and its tributaries. It's the Indus Delta. ये सब कॉन्टिनेंट की बहुत बड़ी फख्र की बात है कि सबसे पहले जो कॉटन स्टार्ट हुई कल्टीवेट होना वो सब कॉन्टिनेंट से स्टार्ट हुई, स्पेशली इन द इंडस डेल्टिक प्लेन्स. Cotton is the other main crop in Pakistan. Refers to the cotton map of Pakistan to see main areas of cotton cultivation, and Punjab, Sindh, Southern Asia, Pakistan and India are the main cotton countries worldwide. Pakistan is number 4 after China, USA and India. Number 1, 2, 3 among the top 10 producers. अभी हमें यहाँ पे और ज़रूरत नहीं है डिस्कस करने की, बस इतना ही है कि पाकिस्तान चौथे नंबर पे आता है आफ्टर चाइना, यूएस एंड इंडिया. अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मैप के ज़रिए किन एरियाज़ के अंदर कॉटन ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है. अपर इंडस प्लेन्स, यहाँ पे आपके जो साल्ट रेंज है वो एंड हो रही है. यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट झेलम, चकवाल यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद सियालकोट है, गुजरांवाला गुजरात, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, सरगोदा, फैसलाबाद, जंग, टोबा और इस तरह साउथ के अंदर आते डैम खानेवाल, मुल्तान, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, ये इसके बेस्ट एरियाज हैं. और उसके बाद इंडस लोअर इंडस प्लेन्स स्टार्ट हो जाते हैं सिंध के अंदर अलॉन्ग विद द साइड्स ऑफ इंडस रिवर्स. ये वो एरियाज हैं जहाँ पे कॉटन ज़्यादा प्रोड्यूस है. टोटल कॉटन का 85% शेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब का और 15% शेयर ऑफ प्रोविंस ऑफ सिंध, और बलूचिस्तान का ना होने के बराबर है और ना ही केपीके का. Climate, number third point, climate and landscapes suitable for the cotton. Cotton grows best in the dry and the warm
Tropical and subtropical climate. Tropical and subtropical. Tropical areas कौन से? For example, this is the ग्लोब। अब ये सेंटर के अंदर इक्वेटर लाइन के ऊपर और नीचे के जो 23.5 डिग्री एरियाज हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज कहलाते हैं। 23.5 डिग्री above from the Tropic of Cancer and below the Tropic of Capricorn के एरियाज 66.5 डिग्री तक नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ तक एरिया सब ट्रॉपिकल एरियाज कहलाते हैं। पाकिस्तान क्योंकि सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आता है। पाकिस्तान का जो साउथ है 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर से स्टार्ट होता है, 24 से ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है। तो ये ट्रॉपिकल क्रॉप है, सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। पाकिस्तान का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो इस क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए बड़ी फेवरेबल है। क्लाइमेट with fertile land, well-drained soil and adequate moisture during the growing seasons, but dry climate is preferable when the bolls open because wet cotton is of little value. जब कभी बारिश हो जाए तो ज़्यादा मौसम वेट रहे तो उस टाइम इस क्रॉप के लिए वो सूटेबल नहीं होता, और उसके कॉटन बूल्स जब ओपन होते हैं, कपास खिलना स्टार्ट होती है, तो उस टाइम उसके ऊपर रेनफॉल हो जाए, कोई भी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है, तो उसकी वजह से वेट होने की वजह से उसकी प्राइस और उसकी क्वालिटी लो हो जाती है। Here that the 2010 and 11 floods have affected Pakistan's cotton crop and its export. पाकिस्तान के अंदर 2010 और 11 के अंदर due to flood phenomena, the crop of cotton was severely affected. Okay, importance of cotton. Cotton has been in use for thousands of years and has many uses in the different forms like fiber, textile, carvons, canvas, fabrics, finished products, garments, household items, medical uses, bandage, surgical cotton, etc. Cotton seeds obtained after the ginning process is used for extracting oil, which is used for cooking and frying. अब यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस जो होता है, ये देखें कॉटन बूल्स हैं, ये कॉटन की पिकिंग हो रही है। ये पिकिंग के बाद ये फैक्ट्री के अंदर जाएगा। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? इसके जिनिंग प्रोसेस होगा। इसमें कॉटन और कॉटन सीड अलग कर दी जाएंगे। अब कॉटन से वो फाइबर बनेगा, ट्विस्टिंग होगी, फाइबर बनेगा, फिर उसके बाद जो सीड्स हैं उससे कुकिंग ऑयल्स बन जाएंगे, एडिबल ऑयल्स। Importance of cotton for Pakistan's economy. Cotton is the cash crop. It is grown in the earn foreign exchange through export as raw material and more or as finished products. Cotton is the Pakistan's top most income earning export. पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद को मानचेस्टर कहा जाता है ड्यू टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पाकिस्तान की जो मोस्टली एक्सपोर्ट्स हैं वो डिपेंड करती हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा हद तक वो रिलाय करती हैं कॉटन के ऊपर, कॉटन प्रोडक्ट्स के ऊपर। पाकिस्तान की मेन एक्सपोर्ट है भी वही टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और उसके बाद फिर आ जाती है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, सर्जिकल और ये चीज़ें आती हैं। मेन वर्थ क्या है पाकिस्तान की? वो है कॉटन। ओके, नेक्स्ट वन इज द राइस। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। मैंने कहा कॉटन इज द सेकंड मेन क्रॉप ऑफ पाकिस्तान एंड राइस इज द सेकंड मेन फूड क्रॉप। यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को क्लियर कर लेना। राइस मैप शोज द राइस रीजन इन द पाकिस्तान इन नॉर्दर्न पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ सिंध। अब नॉर्दर्न पंजाब के रियाज के अंदर ये बहुत बेहतर तरीके से कल्टीवेट भी होता है, इसकी ग्रोथ भी होती है। उसके रीज़न कि इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वहाँ पे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सॉइल कंपोजिशन इसके लिए बड़ी मैटर करती है। सॉइल कंपोजिशन में सिल्ट, सैंड एंड क्ले होता है। जिस सॉइल के कॉम्बिनेशन के अंदर, कंपोजिशन के अंदर सिल्ट कम हो, सिल्ट ज़्यादा हो, क्ले ज़्यादा हो और सैंड की रेशो कम हो, ये उस टाइप वाली जो सॉइल है वो ज़्यादा सूटेबल है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। उसकी
इसकी रीज़न क्या होती है? जो क्योंकि इसको मैक्सिमम वाटर रिक्वायर्ड होता है, तो वो लैंड जो होगी, वो सॉइल जो होगी, वो वाटर को मैक्सिमम टाइम तक होल्ड किए रखेगी। उसके अंदर वाटर की पर्कुलेशन, जो सीपेज ऑफ वाटर है, वाटर की ऑब्जॉर्प्शन है अर्थ की सॉइल की, वो थोड़ी कम होती है, जिसको चिकनी मिट्टी कहते हैं। अभी नदरन एरियाज की बात कर लें, इसमें झेलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, सरगोदा, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, ये एरियाज वो हैं जो इसकी कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा फेमस हैं। और उसके बाद साहिवाल है, जंग है, खाना, ये एरियाज, यहाँ तक एरियाज बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट अगर सिंध की बात की जाए, तो सिंध के अंदर इसकी कल्टीवेशन के लिए जैकमाबाद, शिकारपुर और लाड़काना जैसे एरियाज काफ़ी फेमस हैं इसकी कल्टीवेशन के लिए। और इसके एंड की अगर बात की जाए, तो फिर उसमें जामशोरो, सम पार्ट्स ऑफ ठट्टा, बल्कि मेजर पार्ट ठट्टा का, और उसके बाद जो है हैदराबाद और टंडो मोहम्मद खान, ये एरियाज इसकी कल्टीवेशन के लिए फेमस है। Number two, students, as you know about which quality of rice is considered the best, it is the basmati. Banaspati नहीं होता, basmati है. The long grained rice with an aroma, aroma smell वो होती है जो एक नेचुरल स्मेल होती है, वो एक खूबसूरत स्मेल होती है। स्मेल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन जो अच्छे वाली स्मेल होती है वो एरोमा कहलाती है नेचुरली। Although many varieties of rice are grown across the world, but basmati is the preferred above the rest. Basmati rice is grown mainly in Pakistan and India. It is the third largest export of Pakistan. तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो पाकिस्तान और इंडिया की जो क्वालिटी ऑफ राइस है वो पूरी दुनिया के अंदर फेमस है, और इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के राइस को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। Rice is eaten across the world, especially in the south, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, besides India and Pakistan. वहाँ पे इन कंट्रीज के अंदर जो फर्स्ट फूड जो है वो उनकी राइस है, जिस तरह हमारी चपाती है उनकी राइस है। साउथ ईस्ट एशियन, मलाइया, इंडोनेशिया, इन एरियाज की भी बात हो रही है। It is needs heavy wet soil and warm climate with adequate supply of water, naturally rainfall and by irrigation. सबसे ज़्यादा जिस क्रॉप को वाटर रिक्वायर होता है वो राइस है। Rice is the hard labor crop as it needs to be planted and transplanted manually in most Asian countries. It is also harvested manually. इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं, जो हमारे थर्ड वर्ल्ड, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सेकेंड वर्ल्ड के कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ के अंदर अभी भी मैनुअल तरीक़ों से इसकी जो कल्टीवेशन होती है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है बाकी प्लांट्स के निस्बत। सबसे पहले इसको प्लांट किया जाता है। जब ये उसकी नर्सरी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, 6 इंचेस की या 6 to 9 इंचेस की हो जाती है, तो उसके बाद फिर उसको वहाँ से उखेड़ के उसको फिर फील्ड में जाके वन बाय वन एक एक प्लांट पकड़ के मैनुअली ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। और इसके मॉडर्न वेज भी हैं। यू कैन सी ओवर हेयर द लेबर इज ट्रांसप्लांटिंग द राइस, ये मैनुअल वेज है। ये देख लें, इसका मॉडर्न वे है, मशीनरी के साथ ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। फिर उसकी हार्वेस्टिंग है, ये मैनुअली हो रही है, ये मशीनरी के साथ हो रही है, हार्वेस्टर के साथ हो रही है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस है, और ये पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, पेस्टिसाइड यूज कर रहा है। ओके, डिड यू नो द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI is an NGO located in Philippines, a major rice growing country with the offices in the 16 countries. IRI was set up in 1960, and its aim to find manageable ways to improve the well-beings of poor rice farmers and consumers, as well as the environment. It has also worked on producing better breeds and varieties of rice.
इरी एक डिपार्टमेंट है फिलिपाइन का जिसने उसका एब्रिविएशन क्या बनता है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो उसके 16 कंट्रीज के अंदर उसके अपने डिपार्टमेंट्स भी हैं, ऑफिस भी हैं। उनका मेन मकसद क्या है कि चावल की राइस की क्वालिटी को बेटर करना और इसके जो फार्मर हैं उनकी वेल बीइंग, उनकी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेटर करना, उनको अच्छी प्राइसिंग देके और इस तरीके से, ताकि वो मैक्सिमम इसकी प्रोडक्शन कर सके। Comparison about the export of rice and cotton in 2009 to 10, cotton accounted for an average 50%, while the rice was only 11% of total export source. Economic Survey of Pakistan 2009 to 10. This is the last uh, slide topic of pulses, grams, beans of this lecture. You can see over here, these are the different types of pulses. These are important because they are a good quality, good, easily available source of protein for the healthy diet. They are also cheaper than the meat, poultry, and fishes and can be stored unlike the latter. अब इनको स्टोर करना आसान है, इजीली अवेलेबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू मीट, पोल्ट्री एंड फिशेस। अब एक गरीब पर्सन भी इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है और इनके अंदर बहुत ज़्यादा ये हाइजेनिक फूड होती है और इसके अंदर प्रोटीन्स की मिकदार ज़्यादा होती है। द पल्सेस आर पार्ट ऑफ आवर डेली फूड। चना, मूंग, मसूर, माश, चिकपीस, चने की दाल, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ दालें हैं। सम आर आल्सो ईटन फ्रेश सच एज पीस एंड चना। अब जो कच्चा चना है और उसके बाद मटर जो है वो किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ईटन फ्रेश, वो हम जब वो फ्रेश होते हैं तो उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। There is a Urdu saying about living on the dal and roti. दाल रोटी पे गुजारा जी, वो एक कहावत भी है। As a sufficient diet which shows that vegetables, pulses, bread are the staple diet of the low income majority and also vegetations. अब ये किसी टाइम के अंदर दाल जो थे, मुख्तलिफ किस्म की दालें, इनको ग्राइंड करके इनका फ्लोर बना के कंस्ट्रक्शन के लिए भी काम है। जिस तरह आज सीमेंट यूज़ करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, ईंटों के अंदर ब्रिक्स की उनको जोड़ने के लिए, और इस तरीके से इसी ही पर्पस के लिए किसी टाइम में दालें भी इस्तेमाल की जाती हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से एरियाज फेमस हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। अब ये मोस्टली एरिया जो है, आप ये आप कह सकते हैं कि दिस एरिया इज द एरिया ऑफ थर्ड डेजर्ट, और इसमें खुशाब, मियांवाली, चकवाल, जेहलम, अटक, क्योंकि ये वाले एरियाज, यहाँ पे ये वाले एरियाज जो हैं पोटवार के एरियाज हैं, पोटवार प्लेटो के एरियाज हैं ये वाले, और इन एरियाज के अंदर ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। फिर इन सम पार्ट्स ऑफ सिंध, यहाँ पे फिर चोलिस्तान, नारा और थरपर करके अपर साइड के अंदर भी यहाँ पे गोट की और इन एरियाज, इन गोट की और इसके सराउंडिंग एरिया, सक्कर के सराउंडिंग एरियाज के अंदर ये कल्टीवेट किया जाता है। Okay, did you know the story goes to that when the Mughal Emperor Shah Jahan was put under house arrest by his son Aurangzeb, he was restricted choosing only one kind of grain for his food. Shah Jahan's experienced chef advised him to select gram. शाहजहां ने क्या, अपने शेफ की कंसल्टेशन के मुताबिक उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम चने को ही चूज करते हैं। ग्राम एज इट कुड बी मेड इनटू वैरायटी ऑफ स्वीट्स एंड फ्लेवरफुल फ्लेवरफुल डिशेस एज कंपेयर टू द अदर ग्रेन्स। ये थे हमारे आज के टॉपिक्स, को रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने वीट, कॉटन, राइस, फिर आज हमने डिस्कस किया
ग्राम्स को, दालों वगैरह को स्टडी किया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट हो गया इस लेक्चर का, पार्ट 2 के अंदर फिर हम रेस्ट ऑफ द क्रॉप्स स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।